If you're listening to music, listen to the music which is in English. If you're listening to news, listen to the news which is in English. If you're reading book, read the book which is in English. If you're listening to a podcast, listen to the podcast which is in English. If you're watching a movie, watch movie in English. If you're talking to someone, talk in English. Whatever you do, और एकदम stick हो जाओ मेरे चैनल से, so that you'll be learning speaking in a very short span of time. And ये मेरा प्रॉमिस है कि अगर आप वीडियोस को लगातार देखते रहते हो तो आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी होगी, and that's my genuine promise. Welcome to your favorite spoken English channel, Vision Spoken English. In this video, 101 superb tips is going to be told by me, and for the help of yours, I have brought a teacher named Sandeep. He'll be helping you to translate my language in your language. He'll be speaking in Hindi, and your favorite teacher, Prince, will be speaking in English. तो 101 बहुत जबरदस्त टिप्स आपके लिए मैं लाया हूँ, और रेडी हो जाओ. Just give me a few minutes. We are gonna begin within few seconds. For the hard work of mine, I have created such a big file from my hard work. I'm creating this file, and I'm doing several things for you. At least there's just one thing that can be done by you, which is you can like this video. That's all. Thank you so much. Let's get started. First of all, don't be afraid to make mistakes. Be confident. People can only correct your mistake when they hear you make them. In our life, it happens. We are afraid while speaking in front of anyone. We think that, oh, he is observing, she is observing. What he might be thinking in his mind, isn't it? This is what we think, no? So we will have to speak whatever comes to your mind, right? In reality, we all know English. We all speak English. But just because we are afraid of, being judged by others, right? That people will judge me. So the same thing is being told by Sandeep sir. That mistakes are normal. We have to make them. In order to success, you will have to commit mistakes. गलतियाँ हमारे जीवन में आम चीज़ है. हम उसे अपने जीवन में बड़ा हमेशा करते हैं, बट जब तक उसे करते नहीं तब तक हम सीखते नहीं. Exactly. क्या बात इन्होंने बोली है. गलतियाँ हमारे जीवन में बिल्कुल आम है. We will have to go through that, right? Until you go with that procedure, you won't succeed, na yaar. Second tip is something like surround yourself with English. Surround yourself with English. If you're listening to music, listen to the music which is in English. If you're listening to news, listen to the news which is in English. If you're reading book, read the book which is in English. If you're listening to a podcast, listen to the podcast which is in English. If you're watching a movie, watch movie in English. If you're talking to someone, talk in English. Whatever you do in your life, bacha, listen carefully. Whatever you do in your life, you'll have to do in English. ऐसा नहीं कि इंग्लिश में खाना पीना स्टार्ट कर देना. Okay? So the same thing. आप जहाँ भी जाते हो आपको इंग्लिश को ही फेस करना पड़ता है. जैसे कि अगर आप गाना सुनते हो तो इंग्लिश, पेपर पढ़ते हो तो इंग्लिश, अगर आप सोते हो तो सोने समय भी इंग्लिश, अगर आप होटल में जाते हो वहाँ भी ऑर्डर करना होगा इन इंग्लिश, आप कोई भी काम करते हो आज के जनरेशन में आपको सभी काम में मदद मिलेगा इन इंग्लिश. अब अभी या तो डर लो, आइदर यू जस्ट मेक योर सेल्फ अफ्रेड कि नहीं यार मुझे नहीं सीखना, क्या होने वाला है, और इस डर को फेस करते हुए आगे बढ़ जाओ कि नहीं मुझे सीखना है यार, मुझे किसी के सामने बेइज्जती नहीं करवानी. अगर आप में ये कमिटमेंट आया, देन हु कैन मेक यू स्टॉप, राइट? नो वन. नेक्स्ट वन, प्रैक्टिस एवरी डे. मेक योर सेल्फ अ स्टडी प्लान. डिसाइड हाउ मच टाइम इन अ वीक यू आर गोइंग टू स्पेंड स्टडिंग एंड स्टिक टू इट. एस्टैब्लिश अ रूटीन. बच्चा देखो, आपके लाइफ में बहुत लंबा एक टाइम होता है, राइट? आपके डेली लाइफ में आप क्या करते हो? खाना खाते हो, सोते हो. देयर आर सेवरल थिंग्स दैट यू डू. व्हेन डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश? Never. Then how will you learn it? Practice makes you perfect. Everyone knows that. So you'll have to do practice for English also. How will you do that? You'll listen to English, you'll speak English, you'll read English. तीन ही तो प्रोसीजर है बेटा, और कुछ है क्या? हम आसान भाषा में से कहेंगे कि सफलता ही सफलता की कुंजी होती है. अभ्यास करो, बिना अभ्यास के कुछ भी पॉसिबल
बिल्कुल नहीं हो सकता बच्चा, पॉसिबल ही नहीं है। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, अच्छा देखो अभी मैं बोल पा रहा हूं तो स्टार्टिंग वीडियो जब मैंने बनाई थी ना तो मैं बहुत शर्माता था, मैं एकदम पागलों की तरह बोलता, पता नहीं क्या बोले जा रहा हूं। अभी एकदम मैं गो विद द फ्लो हूं, जो निकल रहा है सुनने वाले सुनते रहे, हु केयर्स अबाउट देम। यही आपको करना होगा बच्चा। टेल योर फैमिली एंड फ्रेंड्स अबाउट योर स्टडी प्लान और गेट देम टू पुश योर स्टडी एंड ऑल्सो डोंट लेट देम इंटरप्ट यू। होता यही है मेरे लाइफ में, पता है एट स्टार्टिंग व्हेन आई वाज ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश, यू नो समटाइम्स माय मम्मा यूज्ड टू इंटरप्ट मी, समटाइम्स माय सिस्टर यूज्ड टू इंटरप्ट मी। ओ इंग्लिश पढ़ रहा है बेटा। मैंने एक दिन प्लान बनाया इसका, मैंने साफ साफ होने का, मम्मा आई हैव सम गोल्स, I have some determination to do something and I stick to it। मैंने मम्मा को बोला मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, सॉरी मम्मा, मैं जो करना चाहता हूँ मुझे प्लीज़ करने दो, अभी डिस्टर्बेंस मत करो प्लीज़। तो अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स को बताओ कि आप इंग्लिश सीखने लगे हो। तो मैंने अपने मम्मा को समझाया कि नहीं, आई हैव सम डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग एंड प्लीज डोंट इंटरप्ट मी, एंड दे डिडंट, एंड दैट इज हाउ आई बिकेम फ्लुएंट। एंड नाउ द सेम थिंग विल बी टोल्ड बाय शोला सर, व्हिच इज संदीप सर। लेट्स हियर। अपने जीवन में एक सफलता पाने के लिए इंसान कुछ ना कुछ तो करता ही है। तो आप अपने लाइफ में इंग्लिश सीखने के लिए एक सिंपल सा शेड्यूल बनाएं या एक रूटीन बनाएं और उससे फॉलो करें, उसे करें। लोग क्या करते हैं, शेड्यूल तो ज़रूर बनाते हैं बट उसे फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि वो क्या सोचते हैं कि परिवार वाले क्या सोचेंगे, माँ क्या सोचेगी, बहन क्या सोचेगी, हमारे दोस्त क्या सोचेंगे, बंदा इंग्लिश बोल रहा है। बट जब तक आप गलत इंग्लिश नहीं बोलते सकते तब तक आप सही भी इंग्लिश बोल नहीं सकते पाओगे। तभी तो मैं बोलता हूं ना, कमिट मिस्टेक्स एज मच एज पॉसिबल। तो ये था हमारा सराउंड करने का। नेक्स्ट, प्रैक्टिस द 4 कोर स्किल्स। सिर्फ 4 कोर स्किल्स है बच्चा। उसके बाद इंग्लिश का है, आप कहाँ हो, दोनों एक जगह पे होगे। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग। फिर से मैं बोल रहा हूं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इसके अलावा और सुनो, बस इतना ही तो है, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। पढ़ना, लिखना और सुनना। बस अगर ये चारों काम आपने किए बच्चे, फिर तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपके पास सेंस ऑर्गन्स है ना। आपके पास सेंस ऑर्गन कितने होते हैं? 5 होते हैं, सबको ये पता है। अब उसी सेंस ऑर्गन से डेटा को आप कंज्यूम करते हो, आप डेटा को सेव करते हो, और आपके पास डेटा ज़्यादा कहाँ है? हिंदी वाला डेटा ज़्यादा है। आप बात करते हो हिंदी में, आप गाने सुनते हो हिंदी में, तो कहाँ से इंग्लिश आएगी भाई? वो सब तो सीखना पड़ेगा ना बच्चा। तो ये होगा, तो 4 चीज़ों पर फोकस करना है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अंग्रेजी बोलने के लिए हमें 4 चीज़ों को करना बहुत ज़रूरी है: पढ़ना, लिखना, सुनना और बोलना। नेक्स्ट है, अपने पास एक नोटबुक रखना है। कीप अ नोटबुक फॉर अ न्यू वर्ड्स यू लर्न एंड यूज देम इन सेंटेंस एंड ट्राई टू से एटलीस्ट 3 times when you speak. Keep a notebook with yourself, for there are several vocabularies that you go through on your daily basis, isn't it? Download an application which will send you notification for new vocabularies. When you will go through that now, you'll be learning new words on daily basis. और 365 दिनों में, 1 साल में 300 वर्ड्स सीखोगे बच्चे। और क्या पता है, एक दिन में सिर्फ एक ही वर्ड सीखोगे, बहुत सारा नोटिफिकेशन आएगा उसके नीचे और आप जाओगे, वो कैब सीखोगे, तभी तो हो पाएगा ना बच्चा। ऐसा ही वोकैबुलरी तो अपनी बिल्ड नहीं कर पाओगे। So you'll have to go through this process. You'll have to download an application in which you'll be getting notification for new applications or new vocabularies, and then you'll be going through that, you'll be learning, you'll be using that in communication, and that's the way how you'll be speaking English. एक कॉपी रखनी है आपके अपने पास, और उसमें आप जो भी प्रतिदिन नए शब्द को ग्रहण करते हो उसे आप अपने कॉपी में लिखें, और उसे 3 शब्दों या फिर हम कह सकते हैं कि 3 बार कम से कम अपने बोलने चालने में उस वर्ड्स को लाएं, उन शब्दों को लाएं। इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन में जब यूज़ करोगे ना, रियल टाइम एक्सपीरियंस आपको फील होगा। अब देखो, अगर आप सीखते हो कि H2O का मतलब यहाँ वाटर होता है, तब उस वाटर को कैसे समझोगे? जब तक आप हाइड्रोजन नहीं बनाओगे, जब तक हाइड्रोजन में ऑक्सीजन नहीं बनाओगे, पानी बनेगा कैसे? क्या ये याद करने से आप याद हो जाएगा कि नहीं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने से ही H2 बनता है? नहीं, H2O बनाने के लिए आपको देखना होगा, और यही तो आप करोगे बच्चे। नई वर्ड सीखोगे, इंप्लीमेंट करोगे लाइफ में, और चीज़ों को बहुत जल्दी सीखोगे। तो
इन 5 टिप्स के साथ ही इस वीडियो को मैं अभी एंड कर रहा हूं। इसके टिप्स लगातार सीरीज के तौर पे आता रहेगा और एकदम स्टिक हो जाओ मेरे चैनल से, सो दैट यू विल बी लर्निंग स्पीकिंग इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। एंड ये मेरा प्रॉमिस है कि अगर आप वीडियोस को लगातार देखते रहते हो तो आपकी स्पीकिंग बहुत अच्छी होगी, एंड दैट्स माय जेन्युइन प्रॉमिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू so much for liking this channel along with breaking that and destroying that subscribe button, and make sure to press that bell icon in order to get new videos on daily basis. Thank you so much.